The important topic at hand today is monetary policy transmission improved. So, what is monetary policy transmission? We'll try to understand, because whenever we deal with the topics that we are referring to in economics, okay, so economics mein it is very important to understand ki what is the concept behind that, because economics is not a subject you can you cannot just remember things. You need to understand, because the question also are related to the understanding. Apart from some basic facts, the prelims questions are also related to the understanding of the subject or the understanding of the matter. Now, why in news? Because a recent RBI report has said that after the I will write it down so that you follow me. RBI report has said that after the external, ठीक है, external linking of interest rates, ठीक है, after the external linking of interest rates, what has happened, इसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है, इसका रिजल्ट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन has improved. What has happened is कि there was something that RBI did. What RBI did was, RBI said that the banks should link their interest rates. अब ये interest rate कौन सी interest rate है जो कि banks charge करते हैं अपने लोन देने वाले लोगों को, ठीक है, the banks जिनको लोन देते हैं उनको एक special interest rate charge करते हैं. Now banks are like RBI said that you need to link your interest rates on some external benchmark. We'll be looking at कि वो external benchmark कौन से हैं, ठीक है. And RBI has said that after the external linking of the interest rates, monetary policy transmission has improved. Monetary, यहाँ पे दो चीजें हैं. The first one is interest rate, second one is monetary policy transmission. और दोनों का लिंक हमें एस्टैब्लिश करना है कि एक्सटर्नल लिंकिंग ऑफ ठीक है. तो एज ए सेड कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, ये दिस इज अ बैंक, ठीक है. नाउ वी कंसिडर टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट, and the second one is कि how has the monetary policy transmission improved. We have 2 points to analyze, and we will be linking the both to which phenomena? External benchmark, ठीक है, external benchmark. Now what is external benchmark? External benchmark is no rocket science. External benchmark is just a rate which decides the interest rate of the bank, okay, which decides the interest rate that the bank will charge, ठीक है. अगर मैं ये कह दूं बैंक को, अगर सिंपल टर्म्स में, इन द वेरी लेमन लैंग्वेज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कि अगर मैं बैंक को ये कह दूं, अगर आरबीआई बैंक को ये कह देता है कि आप जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो अपने मतलब अपने बोरोवर्स पे, ठीक है, whatever the interest rate you are charging to the people who you are extending your loans, that should be linked to repo rate, for example, ठीक है. तो रेपो रेट पे आप इंटरेस्ट को कैसे लिंक कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, अगर एक फॉर्मूला बना दे आरबीआई फॉर्मूला बना दे कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, आई आर इज इक्वल टू, मतलब अगर बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी रेपो रेट प्लस कॉस्ट ऑफ बैंक, ठीक है. तो अब जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक, अगर बैंक ये कह दे कि मेरा कॉस्ट ऑफ 0 है, ऑपरेशनल चार्जेस 0 है,
तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रेपो रेट के बराबर। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रेपो रेट के बराबर। अब ये तो हो गया इस बात की अंडरस्टैंडिंग कि हम, इफ आरबीआई वांट्स द बैंक्स टू have a interest rate that is linked to some external rate. Repo rate is a rate decided by RBI. It is an external rate to the bank because bank तो bank के internal rate नहीं है ना, sorry. Now repo rate is decided by RBI whereas this is SBI. For example, this is SBI. तो SBI के लिए ये repo rate जो है वो एक external rate है. This is called external linking of interest rate. Now, interest rate charged by SBI will be always a function of repo rate, which is an external rate fixed by RBI. This is the concept of linking the interest rate with the external benchmark. Understood? Now, this was the first aspect of that. Now, we will try to understand what is monetary policy transmission. So, monetary policy, first of all, what is monetary policy? ठीक है, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, देयर आर टू काइंड ऑफ पॉलिसीज, ठीक है. द फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, द सेकंड वन इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है. फिस्कल पॉलिसी, ओके, both are related to money, ठीक है, both are related to the flow of money in the economy. गवर्नमेंट का एम क्या है? टू कीप द इन्फ्लेशन लो, ठीक है, एंड पहला एम तो ये है कि इन्फ्लेशन लो रखना, ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट ही है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है. तो पहला एम क्या है गवर्नमेंट का? टू कीप द इन्फ्लेशन लो. अब इतना भी लो नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत लो इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट्स स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी, ठीक है. तो दैट मीन्स द एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज टू मेक इन्फ्लेशन स्टेबल. इट शुड नॉट बी वेरी हाई, इट शुड नॉट बी वेरी लो, बट इट शुड बी इन अ वेरी स्टेबल रेंज, ठीक है. अब वो स्टेबल रेंज जो है वो 4 ± 2%, यानी ये रेंज कितना है? 2% से 6% का है जो आरबीआई फॉलो करता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टेबल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन विद इन विच द मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू वर्क. अब मनी के फ्लो को अगर गवर्न करना है, ठीक है, दैट इज हाउ, अगर हमें इकोनॉमी में कोई चेंज लाना है तो मनी के फ्लो को चेंज करना है. फॉर एग्जांपल, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, दैट मीन्स द गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सट्रैक्ट द मनी आउट ऑफ द मार्केट और द इकोनॉमी. तो व्हाट विल डू? गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ लेंडिंग. इंक्रीज द रेट ऑफ लेंडिंग कैसे? अगर हम अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, ठीक है, ठीक है. Monetary policy is governed by RBI. Why? Because RBI is the prime institution which deals with the flow of money in India, ठीक है. Whereas fiscal policy is governed by the government, ठीक है. तो RBI monetary policy देखता है, गवर्नमेंट देखती है fiscal policy. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट रेट है, दैट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सेट करती है कि हमें इन्फ्लेशन कितना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है. अब इस इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस या मेथोडोलॉजी है, दैट इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई, और आरबीआई के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमिटी, ठीक है. ही वाज डेप्यूटी गवर्नर एट दैट टाइम. तो उर्जित पटेल कमेटी. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी. नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट फिस्क जो इन्फ्लेशन टारगेट होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बट द टारगेटिंग ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अचीविंग दैट इन्फ्लेशन, है ना, द प्रोसीजर ऑफ अचीविंग दैट इन्फ्लेशन लेवल विल बी अचीव्ड बाय the RBI through its monetary policy. Monetary policy is the policy that directly controls the flow of money in the economy. Monetary policy is that policy which directly controls the flow of money in the economy. Whereas fiscal policy is that policy which indirectly affects the flow of money in the economy. ठीक है. अब ये कैसे होगा? सिंपल बात है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज है तो मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डायरेक्टली चेंज्ड बाय
मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द डायरेक्ट फ्लो ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। दैट मीन्स अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द लेंडिंग रेट, इंक्रीज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि सारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते रहते हैं और देते रहते हैं। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई क्या करेगा कि वो वाला रेट इंक्रीज कर देगा जिस पे आरबीआई लोन देता है बाकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को। अगर वो रेट इंक्रीज हो गई तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जो अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं उसका रेट इंक्रीज कर देंगे। क्यों? बिकॉज पहले के कंपैरिजन में नाउ द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स हैज बिकम हायर। ओके, हाउ? पहले अगर आरबीआई, ठीक है, फिर एसबीआई एक कॉमर्शियल बैंक एंड देन कस्टमर, ठीक है। इफ आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ लेंडिंग तो एसबीआई को लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो वो एसबीआई क्या करेगा, वो कॉस्ट किस पे ट्रांसफर कर देगा, कस्टमर पे। अब जब कस्टमर के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट्स के लिए, तो कॉर्पोरेट विल नॉट टेक लोन्स एंड कॉर्पोरेट विल नॉट इन्वेस्ट अ लॉट, ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ money will be restricted in the economy, and then when the flow of money is restricted in the economy, then inflation comes down. ठीक है? This is the basic operation of monetary policy. Now what is fiscal policy? Fiscal policy में if government increases tax, fiscal policy का सबसे important tool है taxation. If government increases tax, तो what will happen? People के पास disposable income कम हो जाएगी। Disposable income means the income that they can invest in consumption, ठीक है? तो वो वाली इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज हो गई तो क्या होगा? नाउ पीपल विल बी कंज्यूमिंग लेस, बिकॉज पहले अगर आपका प्लान था टीवी खरीदने का, लेकिन अगर टीवी पे टैक्स हाई हो गया है ना, या आपका इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया, तो यू माइट डेफर योर इन्वेस्टमेंट, है ना, और आप उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे जो कि नेसेसरी है, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स और इन सारी गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, डिमांड फॉर गुड्स विल डिक्रीज, ड्यू टू विच इन्फ्लेशन विल डिक्रीज। तो these are the demonstrations of how monetary policy works and how fiscal policy works, ठीक है। now we get back to our issue कि what is monetary policy transmission, ठीक है। तो monetary policy हमने देखा how monetary policy works। now what is monetary policy transmission? ट्रांसमिशन का मीनिंग ये है कि if RBI implements some policy, तो वो पॉलिसी एसबीआई के थ्रू या किसी भी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू या एनबीएफसीज के थ्रू कैसे मार्केट को, है ना, और इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। दोनों एक ही टर्म है, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। दैट मीन्स monetary policy transmission, if we talk about monetary policy transmission, if we talk about the monetary policy transmission, it implies कि how efficiently is any monetary policy that is being decided by RBI is being transmitted to the economy. Understood? How is it impacting the economy at the end? This is called monetary policy transmission. Okay. So what happened is कि if you see as to how this whole process evolved, ठीक है, तो इंडिया में monetary policy transmission was not very effective. Now what has happened? Why are we studying this? Because RBI की रिपोर्ट आई है and it said that after the external linking of the lending rate, ठीक है, now external lending, अगर SBI जो है, अब देखो बेसिक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर SBI को मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट करनी है आगे मार्केट में, ठीक है, अगर ये हम कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब क्या होगा कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इंपैक्ट मार्केट में नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन मैकेनिज्म। दैट मीन्स द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन ब्रोकन। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज हाउ। इफ एसबीआई, अगर आरबीआई कहते कि आई एम इंक्रीजिंग माई लेंडिंग रेट्स, लेंडिंग रेट मतलब रेपो रेट फॉर एग्जांपल, है ना,
तो if RBI says that I am increasing my lending rate, then SBI should increase its own lending rate. ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीआई के से एसबीआई को लोन लेना महंगा हो गया है, तो अब ये अपने कस्टमर्स को महंगा लोन देगा। ये तो एक आइडियल सिनेरियो जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कर रही है। ठीक है, आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट इंक्रीज किया, एसबीआई ने इंक्रीज किया, कस्टमर को महंगा लोन मिलना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा क्योंकि जो लोन्स होंगे महंगे हो जाएंगे, डिमांड्स ऑफ द गुड्स विल बी डिक्रीज्ड। ये तो एक आइडियल सिनेरियो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रोकन ट्रांसमिशन। ब्रोकन ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, बहुत फंडामेंटल है कि अगर एसबीआई जो है, ठीक है, अगर एसबीआई लार्जली रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है, अनअफेक्टेड, ठीक है, इफ एसबीआई रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय आरबीआई's पॉलिसी, अगर एसबीआई का मेजर फाइनेंसेस आरबीआई से आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर एसबीआई का मेजर फाइनेंसेस आरबीआई से आ ही नहीं रहा है, तो ये इसकी पॉलिसी रेट से बहुत ज्यादा इफेक्ट एसबीआई पे नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आरबीआई अगर अपना रेट इंक्रीज करता भी है तो एसबीआई विल नॉट इंक्रीज इट्स ओन लेंडिंग रेट इन द सेम प्रोपोर्शन विद विच आरबीआई हैज इंक्रीज्ड। व्हाई? एसबीआई को ये लगता है कि मैं आरबीआई से तो खाली 10% ही लोन लेता हूं, ठीक है, दैट मीन्स if the major portion of capital of SBI comes from sources other than RBI, it does not come from RBI, तो उस केस में SBI will not be bound, क्योंकि 10% अगर पूरी 100% कैपिटल में से खाली 10% ऑफ द कैपिटल जो आरबीआई के थ्रू आ रही है, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उस बैंक की जो एसेट या कैपिटल साइज है, ठीक है, उस कैपिटल साइज का ओनली 10% आरबीआई के थ्रू आ रहा है, तो अब ये 10% रेज करने के लिए अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो ये 10% ही तो अफेक्टेड होगा, ये 90% विल रिमेन स्टिल अनअफेक्टेड। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल दैट द बैंक कैन लेंड, ठीक है, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो इट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इंडिया में इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज ब्रोकन। व्हाई? बिकॉज जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो कैपिटल है या जो लेंडिंग कैपिटल है उसका मेजॉरिटी ऑफ सोर्स जो है 90% मेजॉरिटी इज नॉट कमिंग फ्रॉम आरबीआई's लेंडिंग, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। मतलब एसबीआई की एसेट साइज जो है या एनडीटीएल जिसको हम कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका जो साइज है दैट इज मेजरली इफेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या है? आप बैंक में जाके अपने पैसे जमा करते हो, डिपॉजिट में, सेविंग में, एफडी में, आरडी में, वो सारा पैसा एसबीआई के पास जब आ गया तो वो सारा पैसा एसबीआई लोन दे सकती है लोगों को, ठीक है। तो बैंक्स के पास पब्लिक डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बैंक्स रिमेन लार्जली अनअफेक्टेड बाय द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पॉलिसी रेट बाय आरबीआई। दिस इज कॉल्ड द ब्रोकन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। I hope you understood this. This is called the broken transmission of, मतलब transmission is broken. The monetary policy is not being transmitted from RBI to the economy. ठीक है? Now RBI if directly interferes in the economy, तो in commercial banks का role reduce हो जाएगा. That will not be a very pragmatic step on the part of RBI. Okay, so this is what is called monetary policy transmission and how it is broken. Now we are trying to understand कि monetary policy transmission का evolution इंडिया में कैसे हुआ, ठीक है। तो 1990s के पहले, prior to the जो LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, उसके पहले जो बैंक्स थे they were having a very strong
कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो 1990s में 1990 में बेसिकली SLR requirement was around 33.5%. ओके, आज 2019-20 में इट इज अराउंड 19.5%. तो यू कैन अंडरस्टैंड द बैंक्स विल हैव टू कीप द 33.5% ऑफ देयर NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एज अ रिजर्व, मतलब दे कैन नॉट लेंड इट, ठीक है। तो SLR की रिक्वायरमेंट्स ये थी, प्लस लोन्स के ऊपर क्या था, लोन्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइक अगर 75,000 रुपीज तक का लोन है तो उस पर 10% इंटरेस्ट रेट मिनिमम चार्ज करना है बैंक को, ठीक है। अगर 75% से ऊपर है तो मतलब तो बेसिक जो लाइक फॉर लोन्स मोर देन 2 लाख, ठीक है, फॉर लोन्स मोर देन 2 लाख द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक कैन चार्ज वाज 16%. यू कैन सी दैट आज अगर हम 2 लाख का लोन लेने जाएं, है ना, तो अगर हम नॉर्मल होम लोन या पर्सनल लोन्स की बात करें तो इट इज हार्डली अराउंड 11 to 12, 13, 14%. 14% will be highest, ठीक है. But this was the condition during 1990 because the economy was not opened up, okay. और फाइनेंसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैंक्स के पास मेजॉरिटी डिपॉजिट था लोगों का, okay, and banks basically function not as a source of credit creation but they acted as a function, उनका जो प्राइमरी फंक्शन था it was provision of financial inclusion to the larger part of the population. तो क्रेडिट क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. यू कैन सी 10% रेट अगर 75,000 पे है, 2 लाख 16% पे, ये तो मिनिमम है. इसके बाद बैंक्स अपना अलग चार्ज करते थे. तो these rates came around 30%. तो इंडिया में क्रेडिट क्रिएशन वाज वेरी पुअर. यू कैन सी कि द रेट्स केम अराउंड 30%, 25 to 30% के अराउंड इंटरेस्ट रेट लगता था अगर आप कोई लोन लेने जाते थे बैंक से. बट 1990s के बाद व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, when the economic reforms started in 1990, after 1990s, from 1991 when economic reforms started, what happened was कि 1994 में डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हुआ. बेसिकली 1992 में ही स्टार्ट हो गया था डीरेगुलेशन. डीरेगुलेशन मीन्स द बैंक कैन चार्ज इंटरेस्ट रेट वॉट एवर दे विश, ठीक है. द बैंक कैन चार्ज इंटरेस्ट रेट एज पर देयर विश, as per their wish, ठीक है. बट द इकोनॉमी वाज ओपनिंग अप. अब इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? क्रेडिट क्रिएशन, टू क्रिएट क्रेडिट सो दैट द एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी प्रमोटेड, ठीक है, क्योंकि बिजनेस फंक्शंस ऑन क्रेडिट. तो यहाँ पे अब डीरेगुलेशन हो गया, ठीक है. तो दैट वाज द फेज ऑफ लाइक स्टार्टिंग, ठीक है. तो 1992 से 2003 तक डीरेगुलेटेड फेज था जहां पे बैंक्स अपने मन से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे. बट व्हाट हैपेंड वाज कि अगर बैंक अपने मन से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है ना, तो आरबीआई विल ऑफ कोर्स लूज द कंट्रोल ओवर द बैंक्स, बिकॉज आरबीआई की लेंडिंग रेट से बैंक का लेंडिंग रेट लिंक नहीं होगा, एंड दैट विल बी अ सिचुएशन व्हेन अगेन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन विल बी ब्रोकन. Now that the RBI was concerned कि how to change the policy so that the monetary policy transmission can be affected by changing the bank's lending rates, ठीक है. तो we'll be seeing how it happened, ठीक है. In 1994 interest rate deregulated, although it started in 1992 itself, हाँ, but 1994 में proper deregulation हो गया था, okay. Banks were free to set interest rates on loans. And SLR requirement was brought down from 33.5% to 31.5%. As I said, 1990 में जो SLR requirement थी, that was around 33.5%. Today it is 19.5%. तो now higher amount of money is available with the banks to lend, ठीक है. फिर 2003 में, but the banks, the RBI saw that because of these policies, the deregulation of interest rates, the RBI is not able to control the inflation as it desires. Yeah, the RBI is failing to transmit the monetary policy that it frames. उसके बाद 2003 में the interest rates were linked to benchmark prime lending rate. Now
एक regime start हुई BPLR. BPLR was a regime where the banks will have to declare कि what is the minimum rate of interest they are charging on the most credit worthy customer. Most credit worthy, यहाँ पे दो important aspects हैं. Whenever we are talking about economics, it is very important to understand each and every concept of it because otherwise it's no purpose. तो अब BPLR अगर रेजिम की बात करें, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क का मतलब दैट विल बी द बेंचमार्क रेट, दैट विल बी द फंडामेंटल रेट. प्राइम मतलब आप अपने सबसे प्राइम कस्टमर को, ठीक है, सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर जो है उसको जो लोन दे रहे हो उसका लेंडिंग का रेट क्या है, ठीक है. अगर आप अपने सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर को हाईएस्ट अमाउंट रेट पे दे सकते हो लोन या लोएस्ट अमाउंट पे दे सकते हो लोन. अब लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर एक बैंक है, ठीक है, अगर एक बैंक है, इसको लेंड करना है किसी पर्सन को, अगर मान लो XYZ को लेंड करना है, तो बैंक विल सी कि XYZ का क्रेडिट रेटिंग क्या है, कि वेदर दिस पर्सन XYZ विल बी एबल टू रिपे द लोन बैक टू द बैंक. अगर इस पर्सन की क्रेडिट रेटिंग पुअर है, ठीक है, that means the person is not very credit worthy, there is a high chance of default. So what will the bank do? Bank will set a higher interest rate, है ना, higher interest rate, so that either the person does not borrow itself, or if he borrows, the interest rate is so high that it accommodates for the risk that the bank is taking. Interest rates are a representation of risk, ठीक है. The very basic concept of interest rate is interest rates are the representation of risk. तो अब आप सिंपल समझ गए होंगे कि अगर जो सबसे अच्छा कस्टमर है उनका, जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है, उसको वो सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्यों, क्योंकि उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड मिनिमम है, तो रिस्क मिनिमम है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ऑफर कर सकता है, ठीक है. तो दैट विल बी द बेंचमार्क रेट. अब जो भी लेंडिंग होगी इसके ऊपर ही होगी. तो गवर्नमेंट RBI said that when this policy of benchmark prime lending was brought in, तो RBI said that you will have to declare your BPLR monthly, BPLR monthly, कि what is the minimum rate you are charging to your customers, ठीक है. मिनिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि this is the rate the bank is charging its most credit worthy customer, ठीक है. अब इससे इस कस्टमर से सारे कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग पुअर ही है, ये सबसे बेस्ट है. आप सबसे बेस्ट है तो आप इसका रिस्क कम है, रिस्क कम है तो आप इसको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर कर सकते हो. दैट मीन्स अगर बैंक अपना ये डिक्लेयर करना शुरू कर दे कि वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहे हैं, तो व्हाट RBI कैन डू इज कि RBI कैन असेस एज टू व्हाट इज द फ्लो ऑफ, हाउ इज द लाइक हाउ इज द इकोनॉमी फंक्शनिंग, हाउ इज मनी फ्लोइंग इनटू द मार्केट. कैसे, अगर SBI है ना, HDFC, सारे बैंक्स अपने BPLR डिक्लेयर करें तो RBI एक असेसमेंट कर सकती है कि RBI को कैसी पॉलिसीज फ्रेम करनी है, सो दैट इस रेट से इन ऊपर हो या इस रेट से नीचे हो, अगर इन्फ्लेशन के बेसिस पे, लाइक अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करना है तो RBI की क्या पॉलिसीज हो. तो व्हाट हैपेंड वाज कि BPLR के साथ प्रॉब्लम्स ये थी कि BPLR वाज अलाउड बाय द मतलब the banks were allowed to set their own BPLRs because there was no external mechanism. RBI did not said कि you will have to follow this formula and set your lending rate. RBI just said that कि आप अपने सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर को किस रेट पे लोन ऑफर कर रहे हो, दैट वो हमें बता दो. ओके, अंडरस्टूड. तो दैट वाज तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या थे, लेकिन व्हाट हैपेंड वाज दिस वाज ब्रॉट इन 2003, ठीक है. 2003 में BPLR रेजिम आया, बट इन 2007, अराउंड 2007-8, गवर्नमेंट ऑब्जर्व दैट 77% ऑफ लेंडिंग, RBI observed that 77% of lending is being done below benchmark prime lending rate, ठीक है. दैट इज कॉल्ड सब BPLR. सब BPLR मतलब कि बैंक्स आर आर्टिफिशियली सेटिंग दिस रेट, है ना, एंड बैंक्स आर लेंडिंग बिलो दैट रेट, ड्यू टू विच द RBI इज नॉट एबल टू फॉर्मुलेट एनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, ठीक है.
तो और एक दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अगर सब बीपीएलआर लेंडिंग सारे बैंक्स करेंगे तो जो ये सारी जो सब बीपीएलआर लेंडिंग्स होती हैं ये अच्छे कस्टमर्स के लिए होती हैं, यानी जो कॉरपोरेट्स हैं, दैट मीन्स जो रिटेल सेक्टर के लोग हैं, राइट, जैसे हाउसिंग एंड ऑल दीज पीपल, दे विल नॉट बी एबल टू गेट अ बिगर सेक्टर ऑफ या एक फेयर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द लोन नहीं होगा, ठीक है। तो टू काउंटर दिस व्हाट गवर्नमेंट डिड वाज, सॉरी, ठीक है, टू काउंटर दिस इन जुलाई 2010 अगेन, इन जुलाई 2010 इंटरेस्ट रेट वाज लिंक्ड टू अ बेस रेट। फिर आरबीआई ने डिसाइड किया नहीं, आप अपने मन से नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था बीपीएलआर रेजिम में? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं था कैलकुलेशन फॉर द बीपीएलआर। द बैंक्स वर इंडिपेंडेंटली एंड इंटरनली डिसाइडिंग देयर बीपीएलआरस, है ना, जिसकी वजह से एक कोहेरेंट पॉलिसी फॉर्म करना मुश्किल हो रहा था और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन तो पॉसिबल ही नहीं था। इन दैट सिनेरियो 2010 में, एंड ऑफ कोर्स वी ऑब्जर्व दैट 77% ऑफ द लैंडिंग इन इंडिया वाज बीइंग डन सब बीपीएलआर, ठीक है। In 2010 what was done was interest rate was linked to base rate. What was done? Interest मतलब now a formula was devised. A formula was devised like कि जो भी interest rate bank charge करेगा that will depend upon the base rate plus spread. Interest rate will be base rate plus spread, ठीक है। अब ये बेस रेट प्लस स्प्रेड का मतलब एक फंडामेंटल फिक्स रेट होगी, है ना, उसके ऊपर बैंक अपने चार्जेस लगा सकता है। स्प्रेड का मतलब चार्जेस, ठीक है। दैट मींस अगर इवन इफ बैंक सेज दैट दे हैव जीरो स्प्रेड, दे हैव नो लॉस, ठीक है, तो दे विल हैव टू एटलीस्ट फिक्स द इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू बेस रेट, बिकॉज व्हेन स्प्रेड बिकम्स जीरो व्हाट हैपेंस इज इंटरेस्ट रेट बिकम इज इक्वल टू बेस रेट। नाउ बेस रेट में अगर हम ऐसा कुछ लिंक कर दें जिसे आरबीआई चेंज कर सके, ठीक है, इफ बेस रेट इज लिंक्ड टू आरबीआई's रेट ऑफ लेंडिंग, देन इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर will vary whenever RBI changes its base rate. Yeah, whenever RBI changes the lending rate, तो interest rate भी vary करेगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या था, ठीक है, यहाँ पे इशू ये था कि बैंक्स के पास एक स्ट्रॉन्ग एक फॉर्मूला तो था, ठीक है, बट बैंक्स वर इंडिपेंडेंट टू चूज, मतलब जो बेस रेट का डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, ओह सॉरी, बेस रेट का जो डिटर्मिनेशन होगा दैट वाज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो यहां पे एक फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फंड, सेकंड वाज ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, ठीक है, थर्ड वाज CRR कॉस्ट, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चल था यहां पे, वी ऑब्जर्व दैट दिस वाज बेस रेट। नाउ इंटरेस्ट रेट एज वी नो, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू बेस रेट प्लस स्प्रेड मतलब एनी चार्जेस दैट बैंक लेवीज, ठीक है। बैंक्स का एम है, जो बैंक्स हैं उनके पास वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट एक्सटेंड करना चाहते हैं, राइट। अगर बैंक्स बहुत सारा क्रेडिट एक्सटेंड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बैंक का एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और अगर बैंक बहुत ज्यादा लेंड कर देगा, है ना, तो इसका एसेट साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। बट आरबीआई का एम क्या है, आरबीआई का एम ये है कि बैंक की लेंडिंग को चेक में रखना सो दैट एक्सेसिव मनी सप्लाई ना हो मार्केट में। ये तो पहला एम है। दूसरा एम ये भी है कि बैंक की लेंडिंग रेट को इस तरीके से मेंटेन करना कि वो बैंक की लेंडिंग रेट को आरबीआई वेरी कर पाए अपने पॉलिसी रेट्स के डिसीजन से, इन केस देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है एंड इफ आरबीआई इज नॉट एबल टू कंट्रोल द लेंडिंग रेट बाय द बैंक, तो आरबीआई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बिकॉज आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही अपने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
इन रेट्स के थ्रू करती है, इनको इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है। बट एज वी सॉ इन द वेरी बिगिनिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन फेल होने का एक वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि द बैंक्स का जो एसेट साइज है या बैंक्स का जो लेंडिंग कैपिटल है, दैट मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट्स एंड नॉट फ्रॉम द आरबीआईज लेंडिंग। ओके, तो यहां पे एक इशू था कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कंसिडर किया गया, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर किसी बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से उस पर कुछ वेट डाला गया, मतलब फॉर एग्जांपल 0.2 या 0.3, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, अगर किसी बैंक का कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड हाई है, अब कॉस्ट ऑफ फंड्स क्यों डाला गया, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल एसबीआई, ठीक है, अगेन कॉमर्शियल बैंक एंड दिस इज आरबीआई, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फंड्स को हमने क्यों डाला, सो दैट whenever SBI tries to raise funds from RBI by taking a loan, ठीक है, तो वहां पे अगर RBI ने रेपो रेट 5% सेट कर रखा है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ये इससे अफेक्टेड होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड विल इंक्रीज, मतलब SBI के पास अपना कॉस्ट ऑफ फंड, नाउ यू कैन सी दैट RBI इज समहाउ ट्राइंग टू लिंक द बेस रेट और बेसिकली द इंटरेस्ट रेट with the rate at which RBI is lending to SBI through the cost of funds. Okay, बेस रेट का कैलकुलेशन होता था इन तीनों पैरामीटर्स पे, और यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, CRR रेट इज ऑल्सो सेट बाय RBI, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को छोड़ के कॉस्ट ऑफ फंड्स और CRR कॉस्ट दोनों RBI से लिंक हो गए, ठीक है। तो RBI ने अब सोचा कि नाउ वी विल बी एबल टू control this whole conundrum of controlling the interest rates of the banks that the banks are lending. But again 2015 2016 में RBI observed that again the monetary policy transmission is not being as efficiently done as the bank expects या RBI expects it to be. Now what happened was, this is a very interesting topic and what we'll try to understand why this was not happening. Okay, what happened was, यहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स जो थे, बैंक्स वर इंडिपेंडेंट टू डिक्लेयर, है ना, बैंक्स वर इंडिपेंडेंट, ओके, बैंक्स वर इंडिपेंडेंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो बैंक्स ने क्या किया, सेविंग डिपॉजिट्स जो थे, है ना, सेविंग डिपॉजिट्स ऑल्सो ब्रिंग इन फंड्स, ओके। तो बैंक्स ने सेविंग डिपॉजिट्स का जो कॉस्ट है, ठीक है, कि सेविंग, बिकॉज सेविंग डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी, है ना, तो सेविंग डिपॉजिट रेज करने का, एक रुपया सेविंग अकाउंट में अपने बैंक को ले आने का जो कॉस्ट हुआ, वही होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर सेविंग डिपॉजिट। तो बैंक्स ने क्या करना शुरू किया, बैंक स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू सेविंग डिपॉजिट्स। इनको करना क्या चाहिए था, दे शुड हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ फंड्स थ्रू linking their rate by calculating the RBI's lending rate, ठीक है, RBI lending rate, मतलब ये हुआ कि बैंक्स को अपनी फंडिंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब बैंक्स को पैसा रेज करना है, उसका कॉस्ट क्या होगा, तो बैंक या तो अपने सेविंग डिपॉजिट्स में पैसे लाके पैसे रेज कर सकता है, या तो बैंक RBI से लोन लेके पैसे रेज कर सकता है, ठीक है, यही तो दो तरीके हैं, ठीक है। या तो ये कर सकता है कि बैंक कहे कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे डालो सब लोग, है ना, और जितना ही सेविंग डिपॉजिट इंक्रीज होगा बैंक का, ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा पैसा लेंड कर पाएगा, ठीक है, ओके। या तो ये कर सकता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं RBI से पैसे ले लेता हूं, जब RBI से पैसे ले लेगा तो ये पैसे लेंड कर सकता है। तो बैंक्स ने क्या किया, व्हाट बैंक्स डिड वाज कि बैंक्स calculated the cost of funds not through this lending route, they started calculating through the deposit route, or they found out they were independent to decide the cost of funds, so they said that saving deposit का जो cost है वो बहुत low है, okay, तो interest rates were again very low, okay। तो यहाँ पे again, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि अब RBI की लेंडिंग रेट पे कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अगेन
तो आरबीआई विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ फंड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स तो सेविंग डिपॉजिट से लिंक हो गया है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम विद बेस रेट दैट वाज ब्रॉट इन 2010। तो फिर 2016 में उर्जित पटेल कमेटी केम, है ना। ओके गुड। नाउ 2016 में 2015 में देयर वाज उर्जित पटेल कमेटी फॉर्म्ड within the RBI to look into this matter, and Urjit Patel committee recommended MCLR. MCLR. This is marginal cost of fund-based lending rate. Now, what is marginal cost of fund-based lending rate? तो marginal cost of fund-based, ठीक है, तो marginal cost of fund-based lending rate में एक फिक्स फॉर्मूला किया गया, ठीक है। That formula was मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज द अमाउंट ऑफ, देखो पहले क्या था, बेस रेट में प्रीवियस सेविंग डिपॉजिट्स पे वो कैलकुलेट कर लेते थे बैंक्स, ठीक है। बैंक्स क्या करते थे, उनके पास जितना प्रीवियस सेविंग डिपॉजिट है उस सेविंग डिपॉजिट पे एग्जिस्टिंग सेविंग डिपॉजिट का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। अब इनके पास पहले से ही सेविंग डिपॉजिट बहुत सारा है, तो ऑफ कोर्स द कॉस्ट विल रिड्यूस, ठीक है, to raise a new saving deposit. But what MCLR did was, MCLR said that you will have to calculate the cost of raising 1 rupee. Now you will have to calculate the cost of raising 1 rupee not through the saving deposit but through the lending route. Okay, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसका फॉर्मूला था, इन्होंने अब फॉर्मूला सेट कर दिया MCLR कैलकुलेट करने का। उस फॉर्मूला में था कि यहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स अगेन, लेकिन बेस रेट में हमने ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट ऑफ फंड्स वर रिलेटेड टू ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। यहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स में हमने स्पेसिफाई कर दिया 92% ऑफ कॉस्ट विल बी रिलेटेड टू लेंडिंग, ठीक है, एंड ओनली 8% विल बी रिलेटेड टू सेविंग डिपॉजिट। नाउ सेविंग डिपॉजिट्स में कॉस्ट्स आर वेरी लो, बट 92% ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ फंड जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू 92% रिलेटेड टू व्हाट, द लेंडिंग बाय आरबीआई। ओके, अब यहां पे नाउ यू कैन सी दैट MCLR रूट के थ्रू हमने आरबीआई इज ट्राइंग टू स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स। ओके ओके, इसमें कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस CRR कॉस्ट ऑफ CRR, है ना। अब कॉस्ट ऑफ CRR का मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक 4%, लाइक CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, a specific amount of money that the bank has to maintain with RBI. Now if the bank is trying to maintain that money for, like if the bank is having 100 rupees with it, है ना, तो उस 100 rupees में से 4 rupees बैंक को RBI के पास रखना है। That means RBI is not able to lend that 4 rupees to people. अगर वो 4 rupees भी बैंक के पास होते तो बैंक would have been able to lend those to people and generate loans. तो अब this is a cost to the bank. तो उस बैंक की जो CRR रेट है उसको भी कैलकुलेट करना है, तो CRR को भी इंक्लूड करना है प्लस स्प्रेड, एनी अदर कॉस्ट दैट बैंक माइट लाइक टू इंट्रोड्यूस। फिर अगेन MCLR में भी ड्रॉबैक्स थे। MCLR में अगेन ये हुआ कि क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी इस बारे में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। MCLR इवन ऑल्सो फेल्ड। उसके बाद 2019 में व्हाट RBI डिड वाज, ठीक है, MCLR कैलकुलेशन इस तरीके से होता था। इट हैड 4 पार्ट्स। टेनर ऑफ द लोन, टेनर ऑफ द लोन मतलब टर्म ऑफ द लोन। द लॉन्गर टर्म लोन्स आर कॉस्टलियर बिकॉज दे हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज द रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉन्गर टर्म लोन्स इज हाई। तो टेनर ऑफ द लोन। सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग न्यू लोन। यहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, पहले बेस रेट में कॉस्ट ऑफ फंड्स था, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स में इंडिपेंडेंट थे बैंक डिसाइड करने के लिए कि वो कौन सा कॉस्ट कंसिडर करना चाहते हैं, न्यू लोन रेज करने का कॉस्ट कंसिडर करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग सेविंग डिपॉजिट का कॉस्ट करना चाहते हैं।
तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज गवर्नमेंट क्लैरिफाइड कि नो, RBI basically clarified you will have to consider 92% weightage to the cost of raising a new loan. ओके अब न्यू लोन कहां से रेज कर सकता है बैंक? RBI से. तो इनडायरेक्टली द बैंक वाज ट्राइंग टू लिंक दिस MCLR टू द RBI's लेंडिंग रेट, एंड ये वाली हम दो देख चुके हैं. नाउ बेस रेट कैलकुलेशन और MCLR कैलकुलेशन में बेसिक डिफरेंस ये था कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स था, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड था. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड वाज बेसिकली रिलेटेड टू रेजिंग न्यू लोन्स, ठीक है. लेकिन यहाँ कॉस्ट ऑफ फंड्स में देयर वाज नो मेंशन कि आपको कौन सी कॉस्ट कंसीडर करनी है. सेकंड वाज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, थर्ड वाज प्रॉफिट मार्जिन एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग CRR. अगेन CRR, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टेन्योर प्रीमियम. यहाँ प्रॉफिट मार्जिन की बजाय टेन्योर प्रीमियम कि आपका जो लोन देने का प्रोफाइल है, that will also be a function of that will also become a part of calculating the lending rate. That is, if banks are lending longer term loans in a larger amount, ठीक है, तो then जो lending rate होगी वो भी higher होगी. It is a basic deduction कि अगर banks जो हैं वो बहुत ज़्यादा loans long term में offer कर रहे हैं तो bank will be taking higher amount of risk. That means they will have to increase their lending rates also to compensate for the risk. Okay. From 2019 onwards, what happened was कि this external linking of benchmark, MCLR was also calculated by the banks, given through a formula that was provided by RBI. Now 2019 onwards, RBI said that okay, we are allowing you to use any four of these interest rates, any four of these rates to determine your lending rate. The first one was RBI's policy rate, policy repo rate, you know. अब डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप रेपो रेट से डायरेक्ट लिंक कर सकते हो. मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा, है ना, दैट विल बी डायरेक्टली रेपो रेट प्लस चार्जेस दैट बैंक माइट वांट टू चार्ज इट्स कस्टमर. तो अगेन अगर रेपो रेट से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा तो RBI जब भी रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा. तो RBI विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. ओके, तो RBI फॉर एग्जांपल विल बी able to easily counter the increase in price or like counter the inflation, है ना, because directly repo rate से interest rate link हो गया है. Again second was 3 month और 6 month T-bill yields are, yield का मतलब होता है कि एक जो T-bill है उस पे हमें कितना interest rate basically मिल रहा है. T-bills are not paying you interest, they are discounted bills, ठीक है. T-bills are discounted on face value. T-bill we already discussed in our previous lecture कि टी बिल का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपीज का टी बिल खरीदते हो, ये फेस वैल्यू है, तो ये आप परचेज करोगे 90 रुपीज में ही. लेकिन ठीक है, फॉर एग्जांपल इट्स नॉट कि आप 90 रुपीज में परचेज करोगे, दैट डिपेंड्स. अभी देखना पड़ेगा कि RBI का क्या रेट चल रहा है 3 मंथ और 6 मंथ टी बिल पे. बट इफ यू आर परचेजिंग 3 मंथ टी बिल, तो आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज इट एट ₹100 और 90, है ना, बट जब आप गवर्नमेंट को 3 महीने बाद वापस करोगे ये बिल तो आपको 100 रुपीज मिलेगा. मतलब आपने 90 रुपीज ही खर्च किए थे लेकिन आपको 100 रुपीज मिल गए लास्ट में 3 मंथ्स बाद. दैट मीन्स आपका जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट हुआ उस पर आपको कितना मिला, 10 रुपीज का या 10% का. तो गवर्नमेंट ने कहा या तो तुम पॉलिसी रेपो रेट से हमारा इंटरेस्ट रेट को लिंक करो अपने, या तो टी बिल के यील्ड से लिंक करो, ओके, या एनी अदर बेंचमार्क पब्लिश्ड बाय FBIL. ठीक है, FBIL is a subsidiary of RBI which publishes benchmark rates like repo rate, reverse repo rate, है ना. ये सारी रेट्स कौन पब्लिश करता है? FBIL. ठीक है, it is a subsidiary of RBI. So this is how now government has said that after 2019, है ना, RBI has said that जब से हमने ये शुरू की है पॉलिसी तब से हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो इम्प्रूव हो गई है. ठीक है, कैसे? RBI said that a 255 basis point increase led to 150 basis point increase in the lending rate. Now ये basis point क्या है? Basis point कुछ नहीं होता, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2.55. मतलब RBI ने 2.55% अगर इंक्रीज किया रेपो रेट्स में या पॉलिसी रेट्स में, तो 1.5% का इंटरेस्ट हुआ, 1.5% का इंक्रीज हुआ है
लेंडिंग या इंटरेस्ट रेट्स में जो कॉमर्शियल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, दैट इज कि नाउ देयर सीम्स टू बी a correlation between the RBI's policy rate and the lending rate that is existing in the market. Okay, this was the whole process कि how lending rate works, how monetary policy transmission works, why is monetary policy transmission broken, how has this evolution taken place. This was all about it. I hope you understood. If you have any questions, kindly comment those in the comment section.